that they have come out with this idea that on Gandhi Jayanti we should we should have some discussions, some charcha on the contemporary issues, whether Gandhian thoughts are relevant in the present day also. So this is a very good thing that students are thinking like this, and students had managed everything, and we are the part of that. So I must thank the Society of Civil and Environmental Engineers, their office bearers, and I also thank the Harshit. I'll just tell you, I don't know Harshit will permit or not, but Harshit is down now these days because of the problem. He's having some he's not having very good health. Despite of that, when I asked him one day before that, will you be able to handle all these things because you are not feeling well? Then he said, no, sir, I will handle it. So now you see the enthusiasm, you see the inspirations, you see the strength of the students of the Society of Civil Engineering, Civil and Environmental Engineering of DTU, that even though he is not fit, he gives his fullest, and single-handedly he has tackled all these things. So I am thanks to them, and this is my duty to welcome everybody. So I welcomed it, but this is a very contemporary issue, and I know that very intelligent panelists are there on the board, and if I am talking something about the Gandhiji, then it will be not I will justify much. But as the issue is very contemporary, I cannot stop myself in of my some views about that Gandhian thought and how it is relevant in the present day or present scenario. See, since the childhood, we are listening about the Gandhian philosophy, and what I believe, I am the firm believer of Gandhian thoughts, and today is a very auspicious occasion. So today is the Gandhi Jayanti. So wish you all the best, or all happy Gandhi Jayanti. Today is the birth anniversary of our our former Prime Minister of India, Sri Shastri ji. Lal Bahadur Shastri. Shastri ji. And today also for the civil engineers, the Karl Trajaji, who is called as a father of geotechnical engineering, is the birth anniversary of that great person also. So this is a very auspicious occasion. My heartiest congratulations to all of you that you are there in the side. So now you see, if I talk about the Gandhian philosophy, I am the firm believer of that, and Gandhian philosophy was relevant, is relevant, and will relevant. So his philosophy was relevant in the past era, it is relevant in the present era, and it will be relevant in the future era also. And now many people get confused that Gandhiji was a politician, was a social reformer, was a environmentalist, what he was. But I tell you, he was a good person. And that's why he could contribute to every part or everything. And if I talk one principles of Gandhiji believes in what we see, what we listen. He practice it, he perform it, and then he used to say somebody to follow it. Now this is missing. We give updesa to others, but we don't follow ourselves. Now I tell you a simple story that everybody might be knowing about the Gandhiji. One person with his child came to Gandhiji and asked Gandhiji that my son is taking too much of sugar. ये चीनी खाने का बहुत इसको आदत है, तो आप जरा इसको मना कर दीजिए कि ये चीनी नहीं खाए, और चीनी बुरी चीज है, इतना चीनी नहीं खाया करे। तो गांधी जी ने उस आदमी को कहा कि भाई आप ना कुछ दिन के बाद आना, आप एक सप्ताह के बाद आना। जब एक सप्ताह के बाद जब वो बच्चा आया अपने पेरेंट के साथ, तो गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम चीनी वगैरह मीठा ज्यादा मत खाया करो, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो
पेरेंट ने उनसे पूछा कि भाई गांधी जी आप ये बात तो उसी समय बोल सकते थे, इसके लिए आपने इतना समय क्यों लगाया? तो गांधी जी ने ये कहा कि पहले इसको मैं छोड़ करके देखा कि क्या हम चीनी को छोड़ सकते हैं, क्या हम शुगर को छोड़ सकते हैं। तो जब मैंने छोड़ लिया तो मुझे लगा कि मैं इसको बता सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ये भी है हमारे संस्कार में, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम इस चीज को मिस कर जाते हैं। तो गांधीयन फिलॉसफी जो थी वो ये थी कि जो आप किसी को करने के लिए कहते हो, जिस चीज का आप उपदेश देते हो, उसको पहले फॉलो करना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए कलीग्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुझे गांधी जी की सबसे अच्छी बात जो लगती है, जो वो सस्टेनेबिलिटी के विषय में बात करते हैं। देखो, सस्टेनेबिलिटी बजवर्ड आज हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आज से 120 साल 125 साल पहले भी गांधी जी का थॉट सस्टेनेबिलिटी की ओर था, और उनके कई ऐसे विचार से आपको सस्टेनेबिलिटी का महसूस होगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। एक गांधी जी का कोट है, मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। He said that the earth provides enough to satisfy every man's need, but not any man's greed. हमारे पास अर्थ ने सब कुछ दिया है, और हम लोग सब अपने को उससे सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं, और अपनी हर एक एक्टिविटी को चालू रख सकते हैं। लेकिन किसी में अगर ग्रीड है तो उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो अपने ग्रीड को हमें कम करना है, अपने नीड की ओर चलना है। और एक चीज जो मैंने देखा है कि एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे इन्वायरमेंट के बड़े जानकार प्रोफेसर के सिंह जी बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एक वर्ड से बहुत ज्यादा परेशानी होता है, जब किसी मटेरियल को और किसी चीज को लोग वेस्ट बोलते हैं। ये पूरा है, ये वेस्ट है। मुझे अपनी सोच गांधी जी की सोच के साथ मिलाना होगा, और हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। वेस्ट कुछ भी नहीं है, देयर इज नो वेस्ट। वी हैव टू रीटर्न इट रीयूजेबल मटेरियल और नॉट यूजेबल मटेरियल। देखो, एज ए सिविल इंजीनियर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और जब मैं कहूंगा कि कंक्रीट में फ्लायर्स मिला लो, तो वो कहते हैं सर ये तो वेस्ट मटेरियल है, ये तो वेस्ट मटेरियल है। ये वेस्ट मटेरियल आपके थर्मल पावर स्टेशन का है, बट दैट इज वेरी गुड मटेरियल फॉर आवर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। भाई आप वो वेस्ट है या प्रोडक्टिव चीज है, दैट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर यूटिलाइजिंग। लेकिन समाज में अगर आप किसी चीज को वेस्ट बोल देते हो कि ये कचरा है या कूड़ा है या बेकार चीज है, तो जो समझदार लोग नहीं है या जो समझदार लोग हैं भी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें एक टर्म जो हम लोग इन्वायरमेंटल में यूज करते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स है, उसमें भी ये बात नहीं है, वेस्ट नहीं कहते हम लोग। हम लोग को कहते हैं रीयूजेबल मटेरियल, रिड्यूस करो, रीयूज करो। So that concept I am talking to all of my students. So from now onwards, we will not say anything as a waste. All are reusable material. जैसे मैं आपको कहता हूँ, मैं I am also associate dean of outreach activities. हम लोगों ने एक नेकी की दीवार बनाई हुई है। अपने हर स्टूडेंट से हम ये कहते हैं कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपके पास मान लो कुछ कपड़ा है, आप ग्रोन अप चाइल्ड हो, आपका कपड़ा छोटा हो गया, नॉट दैट कपड़ा इज नॉट वेस्ट, दैट क्लोथ्स आर नॉट वेस्ट, दैट कैन बी रीयूज्ड। अगर उसको आप साफ करके अच्छे से, प्रेस करके अच्छे से अपने सोसाइटी के गेट पे रख दो, जो आने जाने वाले जो लोग को उनकी जरूरत है, दे विल टेक इट एंड दे विल यूज इट। तो आपके लिए तो वो वेस्ट मटेरियल था, उनके लिए बहुत बड़ा यूजेबल मटेरियल हो गया। आई एम कोलेटिंग द साइंस ऑल्सो विद द सोसाइटी। तो हम जो साइंस में कर सकते हैं, दैट वी कैन परफॉर्म दैट सेम थिंग इन द सोसाइटी ऑल्सो ऑन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ। So I don't want to take much of the time. So this is my thought, and I wish that the 2 points I want to give to all. The first thing, that we should stop telling anything as a waste. We'll tell all things, everything as a reusable materials or byproduct of that industry. Because see, it is very difficult to us to convince our great civil engineer also that flies is not a waste material, it is a very useful material. That GGBS coming out from the steel industry waste as a waste is a very useful material for our civil engineering projects. So that things we have to get into the mind of
everybody from today itself will not talk anything as a rest. It is a reusable material. And second thing I want to tell all to carry with him is that Gandhian thought was, is, and will relevant in all aspects of the life, whether you are a politician, you are a social worker, you are a technocrat, you are a professional. So see, if you go through the, because too much, many of our panelists, they have worked too much on the Gandhian thoughts. They will tell you that plenty of words or thoughts of Gandhiji is there, and you see, you can derive your strength anytime in any of the. If you are not a success, you are getting some problem in your business. You see, he has given the philosophy for how to have very good business, how to have very good technocrat, how to have very good professionals, how to have very good politicians, how to have very good social workers. But overall, Gandhiji was telling, you should be a good human being. If you are a good human being, you will be good on every aspect of the life. With that, I am just stopping my views, and I am thankful that the panelists has come to this discussion on a very short notice, and that's why you see our time frame is somewhere 12:30. It is because of that our panelists are so busy, and I was not able to get time from them. So I got very odd time. So, but thank you to the panelists that they have given this time to us, and I'll tell you that I will utilize this time also, or we will utilize this time in very good way. So thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. I would now like to invite Mr. Anunay Gaur to share his views with us. Yes, good afternoon, distinguished guests, panel members, and my students. First and foremost, I'd like to congratulate you all that you are organizing this event. Today, we are celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi and also discussing about his relevance and relevance of his ideas, his principles in this contemporary world. Very rightly said by Professor Srivastava that he believed that the problems in the today's world, be it personal, be it economic, are caused by not considering the long-term effects of our actions. And this present day, Mahatma Gandhi's way of living is the best example of sustainable living that we can see. He is the best example that we can look forward for sustainable development in this world. In his own words, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not for any man's greed. Okay, so he used the principle of sustainability in essence in all his activities, in all his actions. What we see today is that many countries are irrationally exploiting the natural resource, maybe without any concern, maybe without any understanding of exploiting and when to exploit or how much to exploit. And hence our lives are widely dependent on availability of these natural resources. But what we can see and what we can do is we can strike a correct balance between the usage of these resources and availability of these resources. If this is possible, then we can integrate, we can have a sustained living for the population. However, if we go forward for a very luxurious and very much comfortable life and expending a lot of the resources, we can see that the environment won't be sustainable a lot. Okay, hence the principles, or hence the idea that use and throw, okay, that is not viable in today's world, and we have to go forward for the principles such as 3 Rs or 5 Rs concept, that is reduce, reuse and recycle, and we should go forward for it. We know it well that sustainability tries to fulfill the needs of the present, and that too without compromising the needs of future generation. Hence today, when we start discussing about economic development, we should go forward and also discuss about the environmental development. What is the parameters that we want to discuss about the environmental development? And hence, before any development, we should check the ecology, we should check the environmental impact, because it can be said that because a good building will not always be good development. Okay, there should be environment,
there should be social, economic, and spiritual balance within our development, and by only by then the development will be holistic. There is a specific concern that we enjoy the fruits of economic development today, but we see that by enjoying this, we are depriving the future generations from their abilities to maybe use these resources. There are many examples that certain animals, certain materials go extinct, right? So we should go forward and also analyze what environmental damage we are doing. And hence, sustainable development as a principle, as an essence of Mahatma Gandhi, is very, very much relevant in today's time. We should, in my opinion, okay, we'll discuss this one. In my opinion, that development shall be done without damaging the environment, and we should take along with the social, the economic, and spiritual values. With these full values in development, development will only then be called as sustainable development. Yes, we can move forward, we can have new social ethics to be integrated with the present development, and hence we can have a good environment, good personal growth, a peaceful coexistence with the environment as well. Okay, so economic growth should mean always an equitable and sustainable development. And with this note, I wish you all an equitable, sustainable, and happy life. Thank you, everyone. Thank you, sir. I would now like to invite Professor S.K. Singh to enlighten us. सर आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, थैंक यू। मैं म्यूट था, मैं अनम्यूट हो गया फिर अब। हाँ ठीक है सर। जी 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 जी। तो धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभिषेक और हमारे सोसाइटी ऑफ एनवायरमेंट, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये हमारे अमित जी और ये अभिषेक और जितने और इनके लोग हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव है, कुछ न कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा कराते रहते हैं, और इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। तो अभी हमारे साथ पतंजलि साहब, राजीव वर्मा साहब और देसवाल साहब, तीनों लोग जुड़े हुए हैं और हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और वेबिनार में और लोग भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो चूंकि पतंजलि साहब भी हमारे पुराने जानने वाले हैं। पतंजलि साहब नमस्कार आपको। जी नमस्कार सिंह साहब। जी 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 जी। और राजीव वर्मा साहब से भी मेरी हमारे ख्याल से मुलाकात है, क्योंकि हम लोग पहले जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था तो हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही पार्ट थे। तो मैं भी करीब 3 साल तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड भी था, और उसके बाद डीन भी रहा, डीन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी भी रहा। और आपका वर्क्स एडवाइजरी बोर्ड है, उसका तो मैं करीब 10 साल मेंबर रहा। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो जो स्टेडियम वगैरह बना था, तो सब तो हमने उसके पार्ट हम भी थे। तो काफी समय तक हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट थे और आप लोग के साथ में ही थे। लेकिन जैसे 2009 में जब ये हमारा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना, उस समय से फिर हम लोग जो है आप लोगों से दिल्ली यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग हो गए। लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम लोग अलग भी नहीं हुए, आप लोगों से तो जुड़े ही हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये आप दिल से तो साथ है ना? हाँ बिल्कुल, दिल से तो आप हमारे साथ हैं ना? साथ है, बिल्कुल दिल से साथ हैं आप लोगों के। ठीक, वो जरूरी है। हाँ जी। तो ये हमारे यहाँ क्या था, पहले ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन लॉन्ग बैक। अमित, कब 1964 में स्टार्ट हुआ या और पहले हुआ? कब हुआ था ये? यस सर, मुझे लगता है 64 से भी पहले हुआ है। हाँ, इट वाज स्टार्टेड इन 1964। तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ तो करीब 4 या 5 डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन भी है। बट आई ज्वाइन
this institute, this Delhi College of Engineering in 2000. So at that time, environmental engineering was at the PG level. Everywhere it was at PG level. So we are the first among first engineering colleges and institutions who started undergraduate course in environmental engineering. So we are also running BTech environmental engineering course from 1998. First batch was passed out in 2002. After us, many colleges opened this BTech program in environmental engineering. And last year only this IIT Bombay also opened this BTech in environmental engineering. So at least for environmental engineering, we are pioneer in the country, and our students are everywhere in all departments, all government departments, private departments, even consultancy. They are doing very good in the civil as well as environmental engineering. And with the initiative of, I was the head of civil engineering at that time, by the initiative of Dr. Amit Srivastava, this Society of Civil and Environmental Engineering was started. And we started this to keeping in view that all the civil and environmental engineers should be member of this. And with that motive, this association was started. Until now, this is functioning very well. And from the beginning, Professor Amit, he is guiding and supervising each and everything of this society, and our students are performing very well. And this webinar has been organized on the occasion of this Gandhi Jayanti, and for the knowing what is the relevance of Gandhi Ji in present days. तो सबसे पहले अभी इसके पहले भी मैं एक अभी और वेबिनार चल रहा था, उसपे भी मैं अभी था, तो गांधी जी पे ही था, गांधी जी पे था, और वो थोड़ा ई वेस्ट पे था, तो उसपे भी यही चर्चा चल रही थी। तो आज ये गांधी जयंती के अवसर पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए इस वेबिनार में, और आज दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, हमारे महात्मा गांधी जी का, और दूसरे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों का जन्मदिन आज के दिन में है। और गांधी जी का तो ये 151st बर्थडे है। तो इस अवसर पे पूरे पिछले साल पूरे देश भर में पूरे देश ने जो है ये 150th एनिवर्सरी मनाई गांधी जयंती की। उस पर बहुत काम हुए, बहुत सरकार ने भी बहुत कुछ किए। तो आज हम लोग थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी का, चूंकि हम एनवायरनमेंट के फील्ड से हैं, तो हम थोड़ा देखेंगे कि गांधी जी का एनवायरनमेंट के बारे में क्या उनकी सोच थी, उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव उस समय लिए थे। जैसा डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने बताया कि उस समय आज से 150 साल पहले या 125 साल पहले जिस प्रॉब्लम से आज हम जूझ रहे हैं, गांधी जी ने उस चीज को उस समय ही फोर्सी कर लिया था कि नहीं, ये सब चीजें होगी। उसी समय जो आज का सारे हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जिस बारे में आज सोच रहे हैं, या जो हमारा बेसिस है सोचने का, वो उस समय ही जो है सबसे गांधी जी ने बता दिया था। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, व्हिच वाज कोटेड बाय डॉक्टर अमित श्रीवास्तव आल्सो। तो उन्होंने उस समय ही देख लिया था कि लोगों की जो है दिन पर दिन उनकी लालच बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उनकी नीड बढ़ती जा रही है। तो वो जो है वो किसी न किसी दिन आकर के ये प्रॉब्लम होगी। तो जैसा कि है कि हमारा जो है बेसिक नीड तो बहुत कम है, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के लिए तो बहुत सी चीजें बहुत जरूरत नहीं है, और वो रोटी कपड़ा मकान तो अगर जरा सोचे तो ये सबके लिए आसानी से अवेलेबल होगा। लेकिन क्या दिक्कत हो रही है कि आजकल हमारे जो है, हमें एक तो बेसिक नीड है, दूसरी एक्वायर्ड नीड होती है। हमारे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी चीजें चाहिए। हमें कार चाहिए, कार भी ऐसी चाहिए जिसमें एसी वाली भी कार नहीं, फिर और पैसा हो गया तो फिर हमें चाहिए BMW, जिसमें कि और भी ज्यादा कि हम चल रहे हैं तो उसमें जरा सा भी धक्का भी नहीं लगे। तो ये हमारी जो नीड बढ़ती जाती है, हमारी जो ये लालच बढ़ रही है दिन पर दिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए और चीजों के लिए, आराम के लिए, वो हमारे आज के दिन में जो इतनी बड़ी बड़ी एनवायरनमेंट की समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का जो है कारण वही है जो हमने जो है अपनी नीड जो बढ़ा ली है। हमारी जो नीड, लालच जो खत्म नहीं हो रही है
दिन पर दिन जो है कि कितना कितना ज्यादा से ज्यादा आराम वाली चीजें हमें मिलती जाए, और उसकी वजह से हम जो है एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये गांधी जी ने उस समय ही सोच लिया था, इसलिए उन्होंने हर जगह ये लिखा हुआ है कि हमें एनवायरनमेंट को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एनवायरनमेंट से या धरती माँ से उतना ही लेना है जितनी हमें जरूरत है। अब जब हम जरूरत से ज्यादा लेने लगेंगे तो फिर अब सारी प्रॉब्लम आ रही है। आज क्या प्रॉब्लम आ रही है? ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ गई, ड्राउट की प्रॉब्लम आ गई, बाढ़ की प्रॉब्लम आ गई। अभी देखिए कि कहीं पे भी बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। अभी तो कुछ नहीं तो साइक्लोन, अभी वेस्ट बंगाल में साइक्लोन हुआ, उसके बाद बॉम्बे में भी साइक्लोन हो गया, फिर उसके बाद बिहार में बाढ़ आ गई। और ये सारा कुछ क्या हुआ कि हमने जो है सारा कुछ जो है ये अपनी जो आराम के लिए जो हमने अपनी एक्वायर्ड नीड बढ़ा ली है उसके लिए ही है। आराम के लिए क्या किया? फिर हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया। जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ तो हमने सारे जंगलों को काटा, जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट किया, जो हमारी जमीनें थी जहां से कि पानी नीचे जा सकता था, पर्कुलेट होकर के ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, वो उन सब में हमने कंक्रीट जंगल खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ? उसकी वजह से सब जगह जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे ही जा रही है। अभी जब जैसा कि सबको पता है कि पेपरों में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, चेन्नई की वाटर टेबल तो इतना जो है नीचे चली गई कि वहां पे पीने के लिए पानी नहीं होगा। उन सब के जिम्मेदार कौन है? ये हमने जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किया, इसका यही सबसे बड़ा कारण है। और अगर हम गांधी जी का अगर वो करें अगर हम, तो गांधी जी जो सबसे ज्यादा उनको वो था, गांधी जी पक्षधर थे किसके? गांधी जी एग्रीकल्चर के पक्षधर थे, चरखा के और गांव के पक्षधर थे। वो ये चाहते थे हमारे गांव जितने ज्यादा विकसित होंगे उतना ही हमारे पब्लिक के लिए ठीक होगा, देश के लिए ठीक होगा। इसीलिए उन्होंने चरखा किया था कि जैसे उसमें मशीनीकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो खिलाफ थे। चरखा वो किस लिए आए थे कि जिस तरह उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो, कल कारखाने इतने तेजी में नहीं बढ़े, इसलिए वो चरखा लेके आया था, जिससे घर घर में कपड़े हो, घर घर में उद्योग हो और कल कारखाने नहीं हो, जिससे कि एनवायरनमेंट में ज्यादा वो नहीं हो। और इसी तरह से खेती होगी और जो है हमारे गांव में लोग रहेंगे तो गांव के नीड भी कम होती है, तो वो सारी जितनी आज जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो सारी कम होती है। अभी क्या हुआ कि हमने जो है शहरों में आ गए, शहरों में आने से क्या हुआ? सारी प्रॉब्लम यही हुई, जो हमारा गांव से शहर की ओर पलायन हुआ, वो पलायन जो हुआ उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई। अगर हम दिल्ली में ही देखें ना, तो पानी की समस्या आ गई है, सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम हो गई। अब है कितना सॉलिड वेस्ट निकल रहा है कि उसको कैसे कहाँ डिस्पोज करें। और इसी तरह से जो है अभी अब विंटर आने वाली है, इसमें देखिएगा ये तो ऐसा हो जाएगा कि एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी कि हम ऐसा लगे जैसे गैस चैम्बर में है। अगर दिल्ली में देखिए इतना हम कचरा निकाल रहे हैं कि हमारी जितनी लैंडफिल साइट्स, चाहे बलसवा में हो, चाहे गाजीपुर में, चाहे ओखरा में, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल हमने पहाड़ पर खड़ा कर दिया है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोज कर करके, और वो भी भर गया। अब वो स्थिति नहीं है कि हम कहाँ भेजे फेंकेंगे। दिल्ली में तो ये नौबत आ गई कि हमारे पास जगह नहीं है कि कहाँ सॉलिड वेस्ट फेंके। फिर भी सरकार कुछ न कुछ कर रही है। वेस्ट टू एनर्जी, जैसा अमित जी ने कहा था, इसको वेस्ट को वो नहीं समझ करके रिसोर्स समझे, तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली में लग रहा है। तो अल्टरनेट मेथड्स निकालना पड़ रहा है, किस तरह से हम शहरों को करें। अगर ये शहर के लोग गांव में, अगर हम फिर से भी गांव में जाएं तो देखिए अभी भी गांव में किसी तरह की हवा भी ठीक है, सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है और एयर पोल्यूशन भी नहीं है, वहाँ पानी भी साफ है। गांव में तो कुछ भी वो नहीं, इसलिए हमें गांव की तरफ, जो गांधी जी के गांव का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पे फिर से हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा चीज है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही दूषित नहीं करते। अभी हम लोगों ने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने लगे, तब से तो थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट को करने लगे। अगर वो नहीं करे तो फिर हम इन्वायरमेंट को कुछ भी नहीं करें। हम सब चीज फ्री में लेते हैं, पानी भी हमारा फ्री में आता है जो नेचर से मिलता है, सनलाइट जरूरत होती है वो भी फ्री में है, और लैंड से तो कुछ लैंड तो है ही हमारे पास, तो हर चीज फ्री है। वहां से खाली जो है हमें फायदा ही फायदा है। वही अगर अब हम इंडस्ट्री में जाएं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हम जो भी रिसोर्स लेते हैं, रिसोर्स को यूज करते हैं। एक तो हमारा नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रहा है, दूसरा हम एयर पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूट कर रहे हैं, लैंड पोल्यूट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जस्ट दोनों बिल्कुल वो हैं। और हमारी ज्यादा नीड कहाँ से पूरी हो रही है? एग्रीकल्चर से हो रही है। अभी कोरोना हुआ, अभी हमारी जो इकोनॉमी थोड़ी सी संभली,
वो केवल ये रहा कि हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में हमारी उसको जो है हमारी इकोनॉमी को थोड़ा संभाल के रखा, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम नीचे नहीं गए और इंडस्ट्री में और सारे प्रोडक्शन में हम नीचे चले गए, जिससे हमारी थोड़ी बहुत जो है जीडीपी बनी रही, वो रीजन था एग्रीकल्चर को। तो आज वो समय गांधी जी का वो आ गया कि फिर से हम गाँव को उसी तरह विकसित करें, गाँव में सारी सुविधाएं, तो जिससे लोग शहरों की तरफ अंधाधुंध जो भाग रहे हैं लोग, वो भागना बंद करें। अर्बनाइजेशन जब कम होगा तभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी। तो ये गांधी जी ने जो उस समय हमें रास्ता दिखाया था, उसी पे फिर से चलने की जरूरत है, फिर वही चरखे की जरूरत है। चरखे का मतलब ये हुआ कि आदमी जो है मैन मेड चीजें ज्यादा वो करे, आदमी ज्यादा से ज्यादा चीजें अपना कल मशीनों की जगह पे अगर वो यूज करेगा तो वो ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आना शुरू होगी। और दूसरा, गांधी जी ये कहा करते थे, जो आज जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट है उसी गांधी जी के कहे हिसाब से ही आजकल चल रहे हैं। गांधी जी ये कहते थे कि ये जो आप हमें जो हवा पानी और ये जो सब कुछ मिला हुआ है, जो हमें इन्वायरमेंट मिला हुआ है, ये हमें जो है हमें पुरखों से नहीं मिला है, ये हमारा जो है ये उधार है जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, इसलिए हमने जो है ये हमारे ऊपर उधार है उनका। तो इसलिए हमें इतना राइट नहीं कि हम इसको जितना चाहे एक्सप्लॉइट करें, हमें इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से इन्वायरमेंट को उतना ही यूज कर एक्सप्लॉइट करना है जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बची रहे। तो गांधी जी ने जो उस समय अपने लेखों में लिखा, अपनी किताबों में लिखा, या जो अपने वक्तव्य में कहा, वो आज के दिन में कितनी यूजफुल है, हम सब जो है वो कर देख सकते हैं। इसी तरह से गांधी जी का जो स्वच्छता अभियान, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहां पे क्या थे कि अंग्रेजों को यही था कि जितने इंडियंस हैं वो इंडियंस बहुत गंदे रहते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल जो यहाँ से गए थे इंडियंस गए थे या साउथ अफ्रीका वाले थे, उनका कंडीशन भी जो है इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं रही होगी। और एक रीजन ये था कि उनकी आदतें भी थी कि वो ज्यादा गंदे रहते थे। तब से उन्होंने जो ये सैनिटेशन वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया, सैनिटेशन की वहां से वो किया, फिर वो भारत आए तो भारत में भी यहाँ पे उन्होंने ये सैनिटेशन का किया, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे यहाँ इंडियंस हम सैनिटेशन के ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो सैनिटेशन प्रोग्राम जो उन्होंने उस समय सोचा था, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी सरकार ने 3 साल पहले जो स्वच्छता अभियान शुरू किया, हम वहाँ कहाँ से उन्हीं की सोच को आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज इम्प्लीमेंट किया जिसमें कि हम फिर देश को कहाँ से वर्ल्ड लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाए। तो गांधी जी ने जो उस समय सोचा था, जो उनकी वो थी, वो इतनी बड़ी सोच थी कि वो आज तक हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे सरकार के लिए मार्गदर्शन है, उसी पे हमें चलना है। अच्छा, गांधी जी दूसरा बहुत शाकाहारी, ही वाज अ ग्रेट एडवोकेट फॉर द वेजिटेरियन, शाकाहारी थे और शाकाहारी की एडवोकेसी करते थे। इसका सबसे बड़ा ये था कि वो सभी जानवरों पे या सभी पे जो है अहिंसा है, वो चूंकि अहिंसावादी थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जानवरों का भी समाज में वो हो। तो इसलिए वो भी अहिंसा से ही जुड़ा हुआ था कि वो शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी होने का और भी बहुत से फायदे हैं, अभी तो यहाँ समय नहीं कि उसको डिस्कस किया जाए। तो गांधी जी ने शाकाहारी किया कि जो वो सोच थी उनकी, वो भी इसी से इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई थी कि किस तरह से हमारे फ्लोरा फाना इनको कैसे कंजर्व करें, कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स हो, एनिमल में क्रुएल्टी कैसे खत्म हो। ये उनकी उस समय की सोच थी। तो ये गांधी जी की जो सोच उस समय की थी, वो आज भी उसी तरह से मान्य है, और हम सबको उन्हीं से सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और गांधी जी का जो सबसे बड़ा वो था, गांधी जी अप्रोच वाज टू कंजर्व रिसोर्सेज इवन एट टफेस्ट टाइम। गांधी जी की सबसे बड़ी जो ये सोच थी कि जो भी हमारा रिसोर्सेज है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, उसको किसी भी कीमत पे जो है उसको कंजर्व करना है, उसको कंजर्व करके रखना है। कंजर्व करने के लिए उसको जो भी हो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। जो आजकल हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट है, चाहे मेधा पाटकर हो, चाहे और लोग हो, सुंदरलाल बहुगुणा, वो सभी उन्हीं से वो लेकर के जो है आज बेसिस क्या था, वही इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का जो उनका वो था कॉन्सेप्ट, उसी पे वो आगे रहे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि नीड जो है, हमारी नीड जितना कम होगी उतना ही ज्यादा हम कंजर्व कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था कि अपनी नीड कम किया था।
पहनने में उन्होंने वो धोती पहनते थे और रहन सहन भी उनका बिल्कुल साधारण था। तो इसलिए अगर जब आपकी नीड ही नहीं होगी तो आप एक्सप्लॉइट क्या करोगे, एक्सप्लॉइटेशन कम होगा। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा वो था कि सबसे पहले अपने नीड कम करो। नीड उन्होंने कम रखी थी, कपड़े में भी, पहनने में भी, रहने में भी, खाने में भी, पीने में भी, सब में उनकी नीड कम थी। वो कपड़ा कम इसलिए पहनते थे, उनको नहाने में भी कम पानी लगता था, उनको कपड़े धोने में भी कम पानी लगता था, वो सारा काम अपना खुद करते थे। तो इसलिए उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ वाटर उस समय भी उन्होंने किया था। ये सब जो किया उन्होंने, उनके दिमाग में ये कंजर्वेशन ही था। तो जो हम आज वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन सब की बात कर रहे हैं, ये उनके दिमाग में उस समय से था। और उसी चीज को अगर हम उनके मापदंडों पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट के फील्ड में भी बहुत कुछ हम वो कर सकते हैं। जो सत्य हिंसा से उन्होंने जो है देश को आज़ादी दिलाई थी, अगर उनके आदर्शों पर चलेंगे तो हम जो अभी जो सबसे बड़ी समस्या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज की हो रही है, वो सारी के तरफ भी अगर हम ध्यान देंगे तो उससे भी जो है काफ़ी हमें राहत मिलेगी, काफ़ी हमें सीख मिलेगी। तो अब समय आ गया है कि अभी जो उनके बताए हुए रास्ते थे, उनके बताए हुए रास्तों को फिर से हम माने और जितना वो कर सकते हैं यही उनकी एक श्रद्धांजलि होगी। और उनको जो है गांधी जयंती के अवसर पे हम ये प्रण करें कि उनके बताए हुए रास्तों पे जो जो उन्होंने बताया उसको हम फॉलो करें और उस पर चलें। धन्यवाद। ये हमारा थोड़ा वक्त विचार थे जो हमने आपके सामने रखा। बहुत मुझे लगता है कि ये कम से कम 2-3 घंटे का परिचर्चा अलग से होनी चाहिए। हाँ, अलग से आपने बहुत अच्छे से कोरिलेट किया इन्वायरमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज कॉल द नेक्स्ट स्पीकर। हु इज दैट? Asita? Thank you, sir, for your views. Now I would like to invite Mr. Kapil Deshwal to share his views for the same. And you request also that please try to stick within the time. Sure, sir. हमने सॉरी थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। आपका तो मैं कह रहा हूँ 2-3 घंटे का अलग से वर्क करना। नहीं, ये विषय ऐसा है कि थोड़ा कैसे उसको ज्वाइन किया है। एंड वी कैन टेक एनी टाइम लिबर्टी। थैंक यू। हाँ, देशपाल साहब, हम लोग अब आपको सुनेंगे। हाँ जी, नमस्कार। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर पतंजलि जी, सिंह साहब, वर्मा जी, श्रीवास्तव जी एंड अनुय, सभी प्रतिभागी। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। मेरी बात मैं हिंदी में ही रखूंगा। हाँ, हिंदी में। आज गांधी जयंती है तो हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थी भी इसमें जुड़े हैं और गुजरात विद्यापीठ वो गुजराती थोड़ी वॉइस आपकी कम हो गई है, आप स्पीकर के नजदीक आके बात करें। काफी सारी बात गांधी के बारे में। देशपाल साहब, थोड़ा माइक के नजदीक आ जाएं आप। सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरह गांधी के विचार को भी रखा है। और आज की सिंह साहब ने जो दिल्ली से है तो दिल्ली की बात ज्यादा करी, क्योंकि लोकल स्तर पे ही हम ज्यादा अनुभव करते हैं पॉल्यूशन और प्रॉब्लम। एक तो बीच में कॉल आ गई, उससे गड़बड़ हो गया। मेरा काम आज मुझे ये लग रहा है कि मेरा काम ये है कि और आवाज भी गड़बड़ है, वहीं से गड़बड़। आज के समय में इस तरह प्रस्तुत हो यहाँ तो ठीक। सिंह साहब ने कहा जो सरकार देशपाल साहब एक्सक्यूज मी कर रही है, मेक इन इंडिया की बात की थी, अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेरेशन जो है वो इतना काम जनरली देखा गया है इतिहास में कि नहीं करते जितना लोगों की जागृति करता है। लोगों की जागृति वो गांधी जी के लिए अहम। उन्होंने स्वराज की बात रखी, तब स्वराज के बारे में भी ये कहा था कि मेरा स्वराज वो हर व्यक्ति के पास जाने वाला स्वराज। मेरा स्वराज पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम टू एवरी इंडिविजुअल। वो हम कहा किसी भी देश में कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं दे पाएगा। वो फ्रीडम किस तरह से? सिर्फ पॉलिटिकल इंटरमीडिएशन से तो नहीं होना ही है, लेकिन उसमें सबसे जरूरी है सेल्फ सफिशिएंसी। आत्मनिर्भरता के नाम से हम जो बात रखते हैं उसको गांधी जी स्वावलंबन के नाम से
अपने विचारों में रखते हैं। तो ये स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन है सभी तरह के कार्यों में, सभी तरह की अपनी जरूरतों में हमें स्वावलंबी होना है, ग्रामीण स्तर पर स्वावलंबी होना है। देखिए, एक बात स्वयं स्पष्ट है कि गांधी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें शहर कभी भी स्वावलंबी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स है, उस बेसिक नीड्स में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो रोटी और कपड़ा, ये दो चीज के लिए तो हमें गांव में है और किसानों के पास ही जाना पड़ता है। अगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स के रूप में हम अपनी नीड्स को बांटें तो वो नीड्स को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक बेसिक नीड्स है, विथ विच और विदाउट विच नोबडी कैन सस्टेन, तो वो अपनी रोटी, कपड़ा, मकान जो। दूसरी एक ऐसी नीड्स है जो पहले लेजर में गिनी जाती थी और आजकल वो कंफर्ट, वॉशिंग मशीन हमारे लिए कंफर्ट हो गया, एयर कंडीशन हमारे लिए कंफर्ट हो गया। वन अपॉन अ टाइम इट वाज अ लग्जरी, पर अब ये नीड हमने बना। तो कंफर्ट है वो बाजार हमको देता है, टेक्नोलॉजी हमको देती है, और मार्केटिंग हम पे हावी होकर ये बताता है कि अगर आपको इसके बिना जीना पड़ रहा है तो समझिए कि आप डिप्राइव हैं। आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपने घर में एसी लाइए, अपने घर में फ्रिज लाइए, अपने घर में टीवी लाइए, अपने घर में मोबाइल लाइए। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गांधी जी कभी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होनी है, ये हमें अपनी स्थानिक जरूरतों के आधार से व्याख्यायित करना। लेकिन होता क्या है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है, वो मल्टीनेशनल्स, इंडस्ट्री और मार्केट हमें डिफाइन करके देता है। व्यक्ति अपना अध्ययन नहीं करता है, अपनी सोच नहीं रखता है, और जब दिमाग कैप्चर हो जाता है तभी सारी समस्याएं बदलती हैं, पैदा होती हैं, और व्यक्ति की लाइफस्टाइल भी बदल जाती है। तो जो मैं बात कर रहा था कि दूसरी जो कंफर्ट की जरूरत है वो पैदा की गई है, और तीसरी है वो लीजर, आराम के बाद लग्जरी में हम जाते हैं। अब लग्जरी वो तो बहुत पैसे वालों के बस की है, हमारे बस की नहीं है। मान लो कार हमारे लिए कंफर्ट है तो मर्सिडीज हमारे लिए लीजर हो सकता है, वो सभी के पास नहीं है। तो ज्यादातर जो हम मिडल आय के व्यक्ति हैं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, उनका जो झुकाव है वो ये कंफर्ट ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है। कंफर्ट हमें क्यों चाहिए? कंफर्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कम से कम श्रम करना, हम श्रम से इतराते, श्रम से दूर भागते हैं। हमारी जीवन के लिए जो अहम श्रम है वो भी कोई और कर दे तो बहुत अच्छा। ये तो भगवान ने अपनी शरीर की रचना ऐसे की है कि श्रम के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। हालांकि आज की मेडिकल आविष्कारों ने हमें दवाइयों के सहारे बहुत लंबा जिलाना शुरू कर दिया है। अगर आपको डायबिटीज है, आप नहीं चलते हैं तो भी आपके पास दवाई है, आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं तो भी आपके पास दवाई है, वो अलग बात है। भगवान क्या चाहता है ये गांधी लिखते हैं कि अगर भगवान चाहते तो हमें पंख ही दे देते, हमें विमान के ये एरोप्लेन के आविष्कार की जरूरत होती? अगर जरूरत होती, वो बेसिक नीड होती, तो भगवान ने पंख दे दिए होते। ऐसा भी गांधी जी ने। और इन स्वराज में तो गांधी जी ये भी लिखते हैं कि क्या भारतवर्ष के जो लोग थे वो आज के जो यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट से जो मॉडर्न आविष्कार होके आ रहे हैं, ये 1908 की बात है। 1908-9 में गांधी जी ये लिख रहे हैं। तब तक तो इतना भयावह इंडस्ट्रियलिज्म का स्वरूप हमारे सामने आया भी नहीं। तब गांधी जी लिख रहे हैं कि भाई आविष्कार तो भारत के लोग भी कर रहे थे, लेकिन वो शिष्टबद्ध थे, अगर मनीषी, वो मनीषी थे, दृष्टा थे, वो जानते थे कि अगर टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया तो भविष्य में वो मानव जाति के लिए खतरा होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी ही टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया कि जो मनुष्य की बेसिक नीड है, जो उनकी
मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूरा करे और बाकी का काम वो मास प्रोडक्शन में छोड़ दिया, अरे प्रोडक्शन बाय मास पे छोड़ दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैदावार करें। मास प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री में होता है वो गांधी जी को बिल्कुल भी मंजूर था। तो ये लग्जरी से हमें दूर जाना है। अगर पर्यावरण को बचाना है तो अपने कंफर्ट जोन को भी हमें कम करना Excuse me, है। sir. हमें कम Sorry से to कम interrupt जरूरत है, you. जो शुरू में कहा श्रीवास्तव जी ने वो बात रखी थी जो गांधी की द अर्थ हैव इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, बट वी कैन से नॉट एवरीवन्स ग्रीड। अगर एक भी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बहुत चाहिए तो ये मुश्किल है। औद्योगिक संस्कृति और आजकल की जो भौतिक सुविधाएं हैं अगर ये विश्व के सभी देशों अगर हमें प्रदान करनी है तो गांधी जी ये कहते थे कि एक पृथ्वी के रिसोर्स तो नहीं पर ऐसी 3 पृथ्वी के रिसोर्सेज भी हमें मिल जाएंगे तो भी वो ज्यादा नहीं चल पाए। सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात एक रखी कि हम आने वाली पीढ़ी के हिस्से का खा के अभी जी रहे हैं, यानी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। अब डेवलपमेंट को सस्टेन करना है, सस्टेन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लानी है, वो एक विष चक्र है और इस विष चक्र में हम ऑलरेडी घुस चुके हैं। हम उसमें से कैसे निकलेंगे ये मुश्किल। गांधी के रास्ते पे अगर जाना है, पर्यावरण को अगर बचाना है तो पहला हमें स्वावलंबी बनना है, अपनी जरूरतों को अपने आप करना है और उसके लिए गांधी जी मंगल प्रभात में ये बात कहते हैं कि हमें जात मेहनत ग्रेट लेबर कर रोटी के लिए मजदूरी कर। अगर मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बौद्धिक रूप में अपना काम कमाता हूँ तो मैं और तो कुछ श्रम नहीं कर पाता हूँ तो मैं 1-2 घंटा सूद काटूंगा और वो सूद समाज के लिए अर्पण करूंगा। अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्टिव श्रम करूंगा। गांधी ये चलना कूदना फिरना ये व्यर्थ का श्रम मानते। प्रोडक्टिव श्रम करो और समाज के उन लोगों के लिए वो श्रम करो जिनके पास वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये गांधी की ग्रेट लेबर की भावना थी। अब जब हम स्वावलंबी बनेंगे तभी हम ग्राम स्वराज जो गांधी जी की मूल विभावना है उसको साकार कर पाएंगे। गांधी का ग्राम स्वराज है, उसके अंदर स्वदेशी समाविष्ट है, स्वदेशी के अंदर ग्राम स्वराज समाविष्ट नहीं है। ये बात को हमें ध्यान रखना। आजकल हम जो मेक इन इंडिया कह रहे हैं वो गांधी का स्वदेशी किसी भी रूप में नहीं है। पतंजलि का उत्पाद को हम किसी भी रूप में गांधी के स्वदेशी नहीं कहते। देश में जरूर बनता है गांधी के स्वदेशी वो गाँव में पैदा Excuse me, sir. और कुछ किलोमीटर के दायरे में सभी को मिलकर कुछ गांव के समूह इकाई बना के अपनी जरूरतों को पूरा कर। आज जो स्वदेशी हम कह रहे हैं वो तो ऊर्जा का मैक्सिमम कंज्यूम कर रही है, मैक्सिमम ऊर्जा जा रही है। हिमाचल में पैदावार होती है उसको ट्रांसपोर्टेशन से कर्नाटका में भेजा जा रहा है, आंध्र की चीजों को गुजरात में लाया जाए, गुजरात को असम में लाया जाए। तो इससे जो ऊर्जा बिगड़ती है, सड़क पे जो ट्रैफिक रहता है उससे जो धुआं, ट्रैफिक जाम होता है तो धुआं होता है, इनसे प्रदूषण होता है। तो इन सब से निकलना है तो हमें लोकल रिसोर्सेज से ही अपना डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री वहीं स्थापित करनी है और वो भी लोकल लेवल पे। बड़ी मशीनरी भी चाहिए जहाँ लोग काम नहीं कर पाएंगे पर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं कि वो कंप्यूटर से स्वचालित की जाए और कम से कम लोगों को वो काम दिया जाए जो आज टेक्नोलॉजी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर रही है। तो वो गांधी का स्वराज नहीं हो सकता है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उनके स्वराज की बात है, उनकी स्वदेशी की, स्वावलंबन की, पर्यावरण और स्वास्थ्य पे उनके विचार हैं, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना वो भी विचार है। पर बेसिक यही है कि गांधी कहते थे कि स्वैच्छिक गरीबी सभी नागरिक अगर स्वीकार करेगा तभी ये पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। और ये स्वैच्छिक गरीबी जो है अपने आप ली हुई गरीबी है, वो बौद्धिक अपना डेवलपमेंट होगा तभी हो पाएगा, उसके सिवा कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर गांधी विचार आज प्रस्तुत है, सबने कहा था श्रीवास्तव जी ने
इट वाज, इट इज एंड इट विल, प्रस्तुत है उसका वो एक आइडियोलॉजिकल लेके रह गया। हम तो ये देख रहे हैं कि गांधी के विचारों को एक यूटोपिया बना के छोड़ दिया गया है। थैंक यू सर। उनके विचारों को नाम दिया जाता है लेकिन उस हिसाब से कार्य नहीं होता है। हम हर देश दूसरे देश के संसाधनों पे टिकने जा रहा है। पूरे बाजार की जो व्यवस्था है दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई। लोगों को ये हुआ कि ये युद्ध में से अगर शांति चाहते हैं तो सबको बाजार में व्यस्त कर दो, और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ जो 1991 से भारत में भी आया, लेकिन शांति आई नहीं। अब जो लड़ाई होगी, अब जो युद्ध होगा वो प्राकृतिक संपदा की प्राप्ति के लिए होगा। अंग्रेज भारत में भी ये रिसोर्सेस यूज करने को ही आए थे और एक साम्राज्यवाद विकसा था। अब मल्टीनेशनल साम्राज्यवाद विकस रहा है, इनसे हमें निकलना है, तो गांधी के विचारों को अमल में लाना है। अब ये कहने से तो नहीं होगा, पर क्या हम सब अपने अपने घर में सादगी की तरफ जा सकते हैं, स्वैच्छिक गरीबी की तरफ जा सकते हैं, थोड़े अंतर के लिए हम पैदल जा सकते हैं, हम अकेले कार में न जाके कोई लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बौद्धिक लोग ये शुरू करेंगे, यशपाल जी प्लीज कंक्लूड, वी आर आउट ऑफ द टाइम। यशपाल जी प्लीज कंक्लूड। उस तरफ जाएगा, अदरवाइज तो ऊपर वालों को देख के लोग आगे जा रही है, उसी तरफ बढ़ रही है। गांधी कहते थे विचार नीचे से आने चाहिए, वो राज्य संचालन के, इसीलिए पंचायती राज की व्यवस्था को रखा गया। हालांकि अभी भी ऊपर से नीचे की व्यवस्था चल रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, पर उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो आने वाले 100 साल में लोग ये समझेंगे कि भाई अगर पर्यावरण को बचाना है, अगर हमें लंबा भविष्य रखना है, अगर हमें स्वस्थता से जीना है और आने वाली पीढ़ी को भी जिलाना है, तो गांधी के विचार पे जाना होगा। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की सोसाइटी ऑफ इंजीनियर यहाँ आप सभी के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जरूरी हूँ। थैंक यू। Asita, please call the next speaker. Who is the next speaker? Asita, please. Thank you, sir. I would now like to invite Professor Rajiv Kumar Verma, and I would also request all speakers to please keep it short and quick. We have a little time constraint. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें अपने को। यू आर अनम्यूट। अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर आ रही है। जी जी, हाँ हाँ हाँ। रिस्पेक्टेड पतंजलि जी, देसवाल जी, एसके सिंह जी, श्रीवास्तव जी, गौर जी, and my dear students, I am really grateful to Society for Civil and Environmental Engineers, DTU, for inviting me as a speaker on this pious day, that is the Gandhi Jayanti, as well as Lal Bahadur Shastri's birthday also, that is another Jayanti. There is no doubt about that. Please do remember, Ashita has just told that you should stick to time limit. I must tell you one thing, that Gandhi ji in 5 minutes, Gandhi ji himself has written more than 4 lakhs of pages. 4 lakhs of pages. Just 50% of those pages have been published by now, right now. And so within 5 minutes is very difficult, but Asita, please allow me to cross 5 minutes barrier, but less than 10 minutes. There is no doubt about that. So let us talk about Mahatma Gandhi ji. Everybody remembers about Einstein, the great physicist, and he said that generation to come will scarcely believe that such a person in flesh and blood ever walked over this earth. And secondly, we know about, that is Martin Luther King Jr. Now, he said that, that was in 1959, that to other countries I may go as a tourist, but I'll visit India as a pilgrim. Why I'll visit India as a pilgrim? Because India is the land of non-violence. So that's a great thing as such. And please do remember, Gandhi ji, let us try to recall
some vows taken by Gandhiji, and that will also help us in understanding his relevance, and also the environmental this group regarding the sustainability. Now, Gandhiji, the 11 vows, that is ahimsa, satya, atsya is non-stealing, brahmacharya, aparigraha, that is non-possession, then sharir shram, bodily labor, aswad, that is control of the food, palate, sarvatra bhaya varjana, that is fearlessness, sarv dharma sambhav, that is equality of all religions, swadeshi, use locally made goods, and spars bhavna, that is remove untouchability. If we analyze all these 11 vows, and if we try to apply all these 11 vows to our life, naturally Gandhi's relevance will be perennial. That means he was relevant, he is relevant, and he will be relevant as Professor Srivastava has already highlighted. Now, regarding Gandhi, please do remember there are multiple Gandhis: a relevant Gandhi, a fallible Gandhi, an amazing Gandhi, and an accessible Gandhi. And I think students must remember the success of any philosophy, any ideology, if it is emulated, or if it is imitated, or if it is practiced by some great world personalities, such as we start with from India itself, pre-independence, Khan Abdul Ghaffar Khan, then Orsan India, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, and Aung San Suu Kyi. They have been influenced by Gandhism, and they also practiced Gandhism, and that is why even after, that is 71 years after his death, Gandhi's philosophy is still relevant. And I must tell you that Gandhi is the most written about the personality, and also at the same time he is intentionally hated thinker, regarded as mass leader by some, and simply dismissed by many others. Please do remember Gandhi in literature or in history and in all other disciplines. Gandhi has been characterized as a post-colonial nationalist, internationalist, alternative modernist, modernist, postmodernist, idealist, pragmatist, feminist, subaltern, communitarian, as well as a liberal. That is the relevance of Gandhi. Different groups, different thinkers, they are still writing on Gandhi because everybody is baffled by the thoughts and the writings of Gandhi. And I must tell you that Gandhi's philosophy, it as such provides us a kind of solution to contemporary crisis of widespread physical, psychological, sociological, economic, political, cultural, religious, environmental, technological, all kinds of problems. So Gandhi is very, very important for all these things. And Gandhi's, that is the idea of non-violence, that's a very important thing. Then Gandhi's life, just S.K. Singh is highlighted vegetarianism. Gandhi's life is a life of, that is the ethical life. It's an ethical life because Gandhi's focus is on living philosophy, on how we can live a life of satya, and ahimsa with the focus on practice. Please do remember that Gandhi's truth, that was not absolute truth. We don't have time to discuss about these things, but it's a relative truth. But Gandhi was 100% sure of, convinced of his own relative truth. Gandhi's STS, struggle, truth struggle. Someday, if I'll be given opportunity, then we'll also be highlighting these practices of Gandhi, struggle, truth struggle, that Gandhiji started the struggle, then in between
there was some sort of relaxation and then again restarting of the struggle. Gandhiji was also influenced by Bhagavad Gita as a part of open-ended process of constituting meaning. He reinterprets Gita as expressing the highest ideal of moral and spiritual perfection as a gospel of non-violence. When it comes to addressing the question of violence, terror, and terrorism, many critics believe that Gandhi's philosophy has got no relevance. But I must tell you, Gandhiji stresses on diversity, multidimensionality, complexity, and international nature of different forms of violence, social, economic, psychological, political, and all those provide us key with that. Then regarding Gandhi, I must tell you one thing. We all know about means and ends, and Gandhiji has emphasized on the means, and we should take lesson from that. That is why Gandhiji has no doubt, even in his approach to relative truth, that love is better than hate, that peace is better than war, that compassion is better than ego-driven selfness, that violence cannot lead to non-violence, that terror and terrorism cannot lead to a world free from terror. So that is the Gandhi, and Gandhi's abstinence, vegetarianism, that's a very important thing. And I must tell you one thing, that is regarding one archivist's delight. Archivist delight. Gandhiji is an archivist delight in the sense that he is the most important universal icon of modern India. Please do remember, Gandhi's face adorns the postage stamps of our more than 100 countries, and also a number of statues of Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi is a global figure. He is a global figure. He is a historical figure, and also he is a great icon of sculptors, because Gandhiji statues, whenever you go to any nation, you will come across with Gandhi's statue. That is why the Marxists, the feminists, the liberals, the modernizers, the Dalits, the vegetarians, the peaceniks, the social workers, and many other each have their own Gandhi. We all have our own Gandhi. But please do remember that when we try to visualize Gandhi, that is the seated Gandhi, the martyred Gandhi, the sartorial Gandhi, the framed Gandhi, the father of nation in government offices. And I do recall one very important comment by Huxley, that Gandhiji understood man to be of no great size. He understood man to be of no great size, and in most cases of very modest abilities. But he also knew that these physical and intellectual limitations are compatible with practically infinite capacity for spiritual progress. So Gandhiji believed in that infinite spiritual capability of human being. And to conclude, I must tell you one thing, that whatever I have said, naturally, it is even not the tip of the iceberg. But one thing which I want to convey to the students of the civil and environmental engineers, that please try to emulate the life of Gandhi, try to follow the Gandhian principles, and pre-COVID or post-COVID, whatever the problems we face or we are facing, will be able to mitigate all the problems. And lastly, that is the sustainability. Gandhiji believed in sustainability. We should believe in sustainability of everything, not just the resources, but also the earth, the life, and everything.
in sustainable manner. So the take which we take from today's this kind of a very enlightening kind of deliberation, that let us take Gandhi back to our home, let us dwell over Gandhi and Gandhian principles, and let us practice Gandhian values, and let us try to become the second Gandhi. And that is all about from myself. Thank you. Thank you so much, sir. I would now finally like to call Dr. P.C. Patanjali to share his views. इस चर्चा में परिचर्चा में भाग लेने वाले प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, आयोजकों में प्रमुख ए.के. श्रीवास्तव जी, साबरमती से आए देसवाल जी, अनुनय गौड़ जी जिन्होंने भी विचार रखे हैं, आर.के. वर्मा जी, राजीव जी, और इस देश का भविष्य यानी हमारे छात्र, DTU के जिस सोसाइटी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज के बहुत ज्वलंत विषय पर आपने परिचर्चा रखी है और महात्मा गांधी को उनके जन्मदिन पर याद करने का और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करने का एक अवसर, अच्छा अवसर आपने पैदा किया है। मैं महसूस करता हूं कि महात्मा गांधी, अभी सारे विद्वान बोल चुके हैं, मेरे पास बहुत सामग्री कम है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे विश्व में सत्य, अहिंसा और शांति के दूत माने जाते हैं, इसीलिए वो विश्व प्रसिद्ध रहे। उनका व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है वो कैलाश पर्वत के समान ऊंची है और समुद्र के समान गहराई उसमें है व्यक्तित्व में। समाज की हर समस्या पर उन्होंने चिंतन के बाद अपने विचार प्रस्तुत किए थे। वे संत थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे, मनोवैज्ञानिक थे, कूटनीतिज्ञ थे और प्राकृतिक चिकित्सक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, किसानों के मार्गदर्शक थे और किसानों के खासतौर पर अर्थशास्त्री थे। और संसार की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो उनसे बची हो। वे वकील थे, समाजशास्त्री थे, नारी के सम्मान पर उन्होंने काम किया और पर्यावरणविद भी थे, जिसका आज अभी चर्चा करेंगे हम। और वे व्यक्तिगत गुण जो है वो आत्म संयमी थे। उनकी जो कथनी और करनी है उसमें भेद नहीं था। ये उनके आचरण की सभ्यता है और आचरण की महानता है और इसीलिए वो ज़्यादा बाकी और संतों से और बाकी और नेताओं से ज़्यादा लोकप्रिय भी इसी कारण से हुए। वे स्वावलंबी थे और स्वावलंबी बनाना चाहते थे आने वाले समाज को, और इसके लिए एक प्रतीक, दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज से लगभग 111 वर्ष पहले उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पर आज भी चर्चा करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलुओं पर खूब उबाल आता है। लोग कहते हैं कि वो इरेलेवेंट हो गई है। आज के टॉपिक के बारे में भी ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी तो, जैसे श्रीवास्तव जी ने पहले ही कहा था, वो प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। सोचना ये है कि हम प्रासंगिक रहे हैं या नहीं रहे हैं। लगता है कि हम प्रासंगिक नहीं रहे हैं गांधी जी के विचारों के अनुकूल। हमने उनको भुला दिया है। केवल एक औपचारिक कार्यक्रम ये है कि हम इनको याद कर लेते हैं, कभी 30 जनवरी को याद कर लेंगे, कभी 2 अक्टूबर को याद कर लेंगे। मेरा कहना ये है कि हिंद स्वराज के बाद एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो जो चरखा है, देसवाल जी ने काफ़ी चर्चा किया इस पर और संक्षेप में ही भले, लेकिन चरखा किस बात का प्रतीक है? चरखा परिश्रम का प्रतीक है, आत्म स्वावलंबी होने का प्रतीक है, वो प्रोडक्शन का भी प्रतीक है, वो स्वदेशी का भी प्रतीक है और निरंतर चलते रहने का भी प्रतीक है। और उस चरखे को रखने से कोई पर्यावरण में भी कोई गड़बड़ कहीं नहीं होता है, तो वो पर्यावरण का रक्षक भी है। तो एक चरखा जो हमारे आपने देखा हो, जो खादी ग्रामोद्योग भवन है उनके लोगों में लगा है चरखा, तो ये चरखा मामूली चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं चरखे का वो युग चला गया है। चरखे का युग तो अब लौट के आ गया। इन 7 महीनों में
जिनको चरखे का ज्ञान था या चरखे जैसी संस्कृति से जो परिचित थे वो सुखी रहे हैं तन और मन से। जो जो चरखे से अपरिचित रहे हैं या चरखे जैसी संस्कृति से अपरिचित रहे हैं वे परेशान रहे। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जितने मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे उनमें विनम्रता था, उनका दृढ़ संकल्प था, उनका मितभाषी होना था, लंबा भाषण नहीं देते थे, वो निरंकारी थे। किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की कही गई बात यदि उनको ठीक जचती थी वो उसको स्वीकार करते थे और उनका धन्यवाद करते थे। वो क्षमाशील थे। अगर कोई गलती करता है और उनको ये लगता है कि गलती इसने जानबूझकर नहीं की तो उसको वो क्षमा करने के लिए तैयार रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर अपनी गलती स्वीकार करते थे। और उसका एक उदाहरण है, उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैंने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। लोग उनको अंतर्विरोध के नाम से या जिसको कहना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट के नाम से प्रेजेंट करते हैं। मेरा कहना ये है कि जो अंत में मैंने बात कही है वो सुचिंतित है और अनुभव के आधार पर कही गई है तो उसको प्रामाणिक माना जाना चाहिए। अब हम आज के संदर्भ में यदि आप देखें तो पर्यावरण का जिसको कहना चाहिए सत्यानाश किसने किया है? किसी ने बाहर से आकर नहीं किया है, हमने किया है, स्वयं किया है। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम गांधी जी को अगर हम आइकॉन मानते हैं तो पूरे संसार में या मेरे देश में भी जहाँ जहाँ गांधी जी के चरण पड़े वही स्थान हमारे लिए पूजा स्थल हो गया। वहाँ मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक मंदिर बन गया जहाँ हम गांधी जी की पूजा करते हैं, गांधी जी के आदर्शों को याद करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते की तरफ हम चलने की कोशिश करते हैं। हमारी समस्या केवल एक है, वो जो गांधी जी का गुण था कथनी और करनी। और कथनी और करनी में हमारा भेद रहता है। अहिंसा जब उन्होंने कहा था तो उस अहिंसा का मतलब था मन वचन और कर्म से अहिंसा को हम अपने जीवन में उतारें। न हम किसी के बारे में हिंसक भाव लेकर आएँ, न हम किसी के बारे में गाली देकर हिंसा अपनी प्रदर्शित करें और न ही अपने द्वारा किए गए काम के द्वारा हम अपनी हिंसा को प्रदर्शित करें। तो एक एक शब्द में पूरा संसार है। उनका मतलब शांति से ये नहीं था कि युद्ध होने बंद हो जाएं या एक समाज दूसरे समाज से, एक राष्ट्र दूसरे समाज से लड़ना बंद कर दे। उनका शांति का अर्थ बहुत ही गहरा था। उनका शांति का अर्थ था मन की शांति। और यदि मन की शांति हो तो उसी में कहीं न कहीं हम जिस बात की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस बात की तरफ विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हम संतोष को परम धन तो मानते हैं लेकिन उपदेश के लिए मानते हैं। हम बिल्कुल संतोषी जीव नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने प्रकृति का दोहन किया है। प्रकृति ने जो कुछ हमको दिया वो तो माँ के तौर पर दिया, जैसे माँ अपने पुत्रों को देती है, लेकिन हमने अपना आचरण जो है प्रकृति के प्रति वो माँ के समान नहीं रखा है। हमने उसको नष्ट किया है। आदमी की भूख इतनी असीम और इतनी अनंत हो गई कि नदियों के जल को प्रदूषित कर दिया, पहाड़ों को खोद के उनके हृदय को निकाल दिया, वृक्षों को काट के उनको नष्ट कर दिया, धरती को आराम से चैन से धरती को नहीं जीने दिया, जितने जल स्रोत हैं उनको भी प्रदूषित कर दिया। तो इसमें अब हम गलती खुद करते हैं, दोष हमारा है और हम उसका जो समस्याएं हमने स्वयं पैदा की हैं हम उनका समाधान बाहर ढूंढने जाते हैं। समाधान भी अपने अंदर ही है। थोड़े में गुजारा करने की आदत होनी चाहिए, मितव्ययिता की आदत होनी चाहिए। गांधी जी से अगर कुछ सीखना है तो वह सैद्धांतिक चर्चा नहीं है। अपने आचरण में यदि गांधी जी की एक भी चीज़ हम ले आएँ, साधन की शुद्धता जैसी चीज़ ले आएँ या कथनी और करनी जैसी चीज़ ले आएँ, तो मुझे लगता है कि हमको गांधी जी के बारे में चर्चा करने का, बार बार उनको याद करने का, उनको आदर्श मान के हमको आगे बढ़ने का अधिकार है। हम वो अधिकार आज के दिन हम खो बैठे हैं। स्वच्छता की बात जो की गई है और जीवन शैली की बात की गई है, गाँव की ओर जाने की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, कृषि की बात की गई है, वो सिर्फ इसलिए की गई है उन्होंने ये सारी चीज़ें केवल बाहर से पढ़ कर नहीं की हैं। बहुत उन्होंने पढ़ा है। पढ़ने में जब धार्मिक बात करते हैं, हम गीता को हाथ में लेकर वो चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गीता को हाथ में लेने से पहले उन्होंने बाइबल भी पढ़ी है, उन्होंने कुरान भी पढ़ी है और उन्होंने सारे धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे
कि मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे संसार, आसपास के संसार के अनुकूल यदि कोई धर्म ग्रंथ बैठता है और मेरी हर समस्या का यदि कोई समाधान है तो गीता में है। उस गीता की तरह एक और गीता भी है, मैं सजेस्ट कर दूं बीच में, क्योंकि बाद में मुझे लगता है मैं भूल जाऊं या समय की कमी पड़ जाए, कि एक पुस्तक जो है उनके सहयोगियों ने संपादित की महात्मा गांधी के विचार के शीर्षक से, थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी या महात्मा गांधी के विचार के नाम से, R.K. प्रभु और U.R. राव इन्होंने वो संपादित की है। अगर महात्मा गांधी गीता लेकर चलते थे अपने साथ और मुंह में राम राम रखते थे, बगल में भगवत गीता रखते थे, यदि आप मुंह में महात्मा गांधी का नाम लेते रहें और हाथ में महात्मा गांधी के विचार वाली पुस्तक लेके चलें, जब भी कोई आपको संशय होगा, जब भी कोई आपके सामने जो समस्या आएगी, तो उसका समाधान महात्मा गांधी के विचार नामक पुस्तक को खोल लें, उसमें से आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ये मेरी भावी पीढ़ी को सलाह है। अब रही आज के दिन, जिस स्वच्छता की बात, जिस शुचिता की बात सारे हमारे संतों ने की है, सारे हमारे धर्म ग्रंथों ने की है, यहाँ तक के जिनको बहुत अभी सांसारिक जिसको कहना चाहिए पूरे संसार के लेवल पर यूनिवर्सल एक प्रचार कर दिया गया है योग का, तो उस योग के बारे में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है कि शुचिता तन और मन की वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप योग उसके बिना कर ही नहीं सकते। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, हमारे जीवन शैली में भी है। हमें बचपन में सिखाया गया कि सुबह उठ के स्नान करना है शौचालय जाने के बाद, उसके बाद ही आपको भोजन मिलेगा, भोजन का एक दाना भी नष्ट नहीं करना है। ये हमारी मितवयिता गांधी जी ने यही बताया है। तो हम गांधी जी से उनके द्वारा अपनाई गई जीवन शैली से एक एक तत्व यदि ग्रहण करना चाहें, अपने आचरण में उतार लें, ये उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और आने वाले समय में जो समस्याएं हमारे सामने अब मुंह बाय खड़ी हैं, इन समस्याओं को हमने स्वयं ही पैदा किया है कि हमारी, मैंने अभी पहले कहा कि हमारी अनंत भूख, भूख का मतलब है इच्छाएं हमने इतनी बढ़ा ली हैं कि गांधी जी ने तो बता दिया कि एक टूटी हुई चप्पल जिसको मैं ठीक कर लेता हूँ स्वयं ही, और एक मैं लंगोटी पहनता हूँ, और एक चश्मा इसलिए है कि दूरदर्शिता उनका जो चश्मा है दूरदर्शिता का द्योतक है, उसका एक कहना चाहिए प्रतीक है। तो ये कुल मिलाकर, और एक लाठी उनके संयम का और अनुशासन का प्रतीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके अगर हम अपने व्यक्ति में एक एक गुण को भी उतार लें, और दूसरे ये कि जो उन्होंने मॉडल दिया था, जिसको आज से 10-15 साल पहले गुजरात मॉडल कहा गया था सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का, और जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने अब यहाँ प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ उसी गुजरात मॉडल को अपनाया है। वो गुजरात मॉडल अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप गांधी जी को पढ़ लें, जो कुछ उन्होंने किया है मोदी जी ने गुजरात में, उसको पढ़ लें, और अब जो योजनाएं आ रही हैं उनको पढ़ लें, तो आपको लगेगा कि सारी योजनाओं का मूल स्रोत या प्रेरक तत्व महात्मा गांधी के विचार थे। इसलिए महात्मा गांधी के विचारों के अनुकूल यदि देश को और समाज को बनाना है, तो उसमें ये शुचिता का जो एक स्वच्छता का जो मामला है, इसको सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा। और इसी स्वच्छता से आपकी जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। एक बात बहुत अजीब सी लगती है, जो लोग जिनका गांव से संबंध नहीं रहा है, उनको लगता है कि ये ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं ये बड़ी अजूबा चीज़ें ऊपर से आ गई हैं। ये सारी खेती ऑर्गेनिक खेती ही थी। जब पहले जो इनका कृत्रिम खाद का उपयोग नहीं होता था, केवल गोबर की खाद का ही हम इस्तेमाल करते थे, तो हमारी पूरी खेती जैविक खेती ही थी। तो जैविक खेती को अब लौट रहे हैं कि हम वापस गांव की तरफ चलें, अब लौट रहे हैं कि हम प्रकृति की तरफ चलें। प्रकृति का दोहन करके प्रकृति की तरफ जाएंगे तो प्रकृति आपको शरण नहीं देगी। हम में से कितने लोग हैं, नई पीढ़ी से मैं बात करता हूँ, जिन्होंने उगते हुए सूर्य को यानी अरुणोदय में उनको प्रणाम किया हो, जिन्होंने अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम किया हो, जिन्होंने रात में चांद और सितारों की छांव में बैठ के अपने मन की शांति अनुभव की हो, जिन्होंने नंगे पैर जमीन पर चलने का जिनका अभ्यास हो, और जो कितनी फसलों को, कितने पेड़ पौधों को और कितने जीवों को, पशु पक्षियों को आप जानते हैं नाम से
और जोड़ सकते हैं कि वो पक्षी सामने आ जाए, पशु सामने आ जाए, उसको जोड़ सकते हैं आप उनसे। तो आपकी जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो प्रकृति के बारे में लगभग सिमटती जा रही है, सारी प्रकृति और सारा आपका ज्ञान वो जा आ गया आपका कंप्यूटर में, कंप्यूटर से भी आ गया अभी मोबाइल में। तो ये मोबाइल का जीवन जो है वो महात्मा गांधी का जीवन नहीं था। महात्मा गांधी का जीवन था कठोर जमीन पर गर्मी सर्दी बरसात में आदमी वो अपनी जीवट को वो तैयार करता था, उससे परिश्रम करता था, परिश्रम करके रोजी रोटी कमाता था और थोड़ी रोजी रोटी से ही उसका काम चल जाता था। तो कहीं न कहीं संतोष भी चाहिए, स्वावलंबन भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए। हमने श्रम के महत्व को ही बिगाड़ दिया। हमने इंजीनियर पैदा करिए, हमने बड़े बड़े विद्वान पैदा कर दिए, साहित्यकार पैदा कर दिए, टेक्नोक्रेट पैदा कर दिए, लेकिन हम एक जगह चूक गए। हमने अच्छे इंसान पैदा करने बंद कर दिए। उसको फ्रेमवर्क में डाल दिया कि इसको टेक्नोक्रेट बनाना है, इसको हमने इंजीनियर वो बनाना है, क्या नाम डॉक्टर बनाना है। तो इस सारी चीज़ों में अगर प्राथमिकता देखें तो हम उन नैतिक मूल्यों को भूल गए, उन संस्कारों को भूल गए, उस शिक्षा को भूल गए जो हमको बचपन में हमारे गुरुओं ने दी, हमारे माता पिता ने दी, गुरुकुलों में दी। तो मैं समझता हूँ कि हमें कहीं न कहीं उसमें लौट के जाने की ज़रूरत है। और लौट के जाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर झाँकिए और अपने आप को समेटिए। जितना विस्तार आपने किया है उसके कारण आप दुखी हैं। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था कि आप इतना विस्तार करिए अपनी इच्छाओं का कि आप एकदम असंतुष्ट हो जाएं, बेचैन हो जाएं। तो ये जो मन की अशांति है और ये तन की अशांति है, ये हमारी स्वयं की सृजित की हुई है। तो गांधी जी को यदि आप आचरण करना है, गांधी जी को यदि आपने पूजना है, तो उसके पूजने का एक ही तरीका है कि उनके बताए हुए मार्ग को हम अपने जीवन में जिए, हम अपने आचरण में उतार लें। आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I would now like to call the student participants. We first have Chehek. हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम चेहक बता है और मैं DTU से ही ENE की एक स्टूडेंट हूँ। और बहुत अच्छा लगा सब टीचर्स का, सब पैनलिस्ट का, सबका विचार सुन के गांधीज़म के बारे में। और ये भी कि हमें उनकी गांधी जी की जो भी पॉलिसीज थी, विचार थे, वो हमें अपने ज़िंदगी में बिल्कुल लागू करने चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में उनको लागू करूँ भी। So today I'll be speaking about Gandhism and how I implement it in my life. So I'm definitely a believer of Gandhi ji's ideology और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से उसको इम्प्लीमेंट करूँ अपनी लाइफ में। So जैसे कि हम सबको पता है कि ट्रुथ एंड वॉयलेंस were the two pillars of Gandhism. In a generation like ours where we find it very easy to lie about things, we find hard to accept the truth about. So I try to be truthful in smallest to the biggest thing, and I keep small punishments like not eating the food I like for some days so that I can stick to my routine. So I think that honesty as a quality makes that person so much respectable for me, and that should be for everyone. Also, I believe that knowledge and smartness can win over violence any single day, which is proven by Gandhi's actions in the past and is the win-win rule till date. So I prefer the company of people who believe in this, and I myself do believe in it. So Gandhiji explained that according to Hindi scriptures, that a single self-controlled person could eradicate violence from the hearts of every single person. So Gandhiji tried to inculcate a system of self-sufficiency in all his ashrams. Being self-sufficient is what has been my goal, and it's still my goal, I'll say. So there's this very different feeling of being powerful when you're independent and you feel real happiness. And this is highly relevant in today's times also, because we all somehow work for self-sufficiency. हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम अपना काम खुद करें,
और ये एक आदत की तरह अगर हमारे अंदर होगा कि हम अपने काम खुद ही करना पसंद करेंगे और उससे हमें शांति और खुशी मिलेगी, तो इससे अच्छी चीज कोई मेरे हिसाब से हो नहीं सकती है। और जैसे कि गांधी जी ने अडॉप्ट किया था खादी को या फिर अपने घर पे बने हुए कपड़े को, सो ही डिड इट बिकॉज ही वांटेड टू इरेडिकेट द इविल्स ऑफ पॉवर्टी, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन. So I also try to eradicate it in some way by treating everyone equal and respecting everyone. So मैं कभी कभी अपने घर पे भी हमारी मेड के डॉटर के साथ कभी कभी खाना खा लेती हूँ, उसको पढ़ाई में हेल्प कर देती हूँ, और मैं एनजीओ से भी एक दो के पार्ट हूँ. तो मेरे हिसाब से हम सबको अपनी तरफ से हम जो भी जिसके लिए कर सकते हैं खुशी से करना चाहिए, and that gives real pleasure of the world. So to Gandhi, fasting was also a very important method. Fasting का मतलब व्रत रखना, जो कि हम आज के टाइम पे भी रखते हैं. कोई किसी दिन पे रखता है, कोई किसी भगवान को सोच के, बट उस सब का मतलब वही होता है जो गांधी जी ने एक बार को हमें समझाया था. That he believed that fasting would put the body through unusual hardship and would cleanse the soul by giving us the courage to withstand all impulses and pain. So although I am not into fasting routines as such, but I do understand the tremendous benefits of fasting, and I feel that this concept is still active. Even in my family members keep fast on different days due to different reasons. And जैसे कि अभी लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, and the fast food which we used to eat has reduced drastically. So हम सबको ही मेरे ख्याल से ज्यादा हेल्दी, ज्यादा एक्टिव फील होने शुरू हो गया है. Very So good. गांधी जी Yes, सो very good. गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ सबसे सुना भी और अपने भी विचार प्रेजेंट करे. तो इसी के साथ मैं अपना मन की बात खत्म करना चाहूंगी. आप सबको बहुत ही ज्यादा हैप्पीएस्ट गांधी जयंती विश करके. Very good chat. थैंक यू एवरीवन. Really good to see that you are practicing it, and certainly our future is going in the safe hand. We should understand from your whatever you have said just now. So next, Yes sir. Thank you, Shahek. I will now like to call Vivek, whose topic for today is Gandhiji's views on tolerance. Yes, ma'am. Before good afternoon, respected professors and participants. I am Vivek Jorsha from the civil engineering. His views on tolerance. सहिष्णुता पर गांधी जी के विचार. टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता. सहिष्णुता यानी कि सहन करने की ताकत. सहिष्णुता एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन सहिष्णुता को आमतौर पर लोगों की कमजोरी समझ ली जाती है. लेकिन गांधी जी की विचारधारा में कभी भी सहिष्णुता को कमजोरी नहीं थी. मजबूरी को मजबूती बनाने वाली शख्सियत का नाम है गांधी. गांधी जी ने सहिष्णुता को अपने अहिंसा आंदोलन में हमेशा ही ताकत के रूप में प्रयोग किया है. जैसे कि हम एक उदाहरण से देख सकते हैं उनकी सहिष्णुता गांधी को, कि जब 1919 में जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर हिंसा किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो उस 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की. लेकिन उसके 2 साल बाद ही जब अपने लोगों द्वारा चौरा चौरी में हिंसा किया गया, तो इससे गांधी जी को बहुत ठेस पहुंचा और उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया. उनका ये मानना था कि हम सहिष्णुता का प्रयोग करके ही अहिंसा के बल पे हम स्वतंत्रता पा सकते हैं. लेकिन ऐसा करने से उन्हें बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह अपने सहिष्णुता को लेकर के कभी भी पीछे नहीं हटे. एक दूसरा उदाहरण भी है कि जब अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल हुई, तो उसमें उन्होंने एक नया तरीका निकाला. उन्होंने 3 दिनों की उपासना रखी, जिसके कारण
मिल मालिकों में खलबली भी मच गई और हड़ताल भी समाप्त हो गए। यानी कि हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सहिष्णुता को लेकर के कभी भी अपने जीवन में या फिर आंदोलन में कमजोरी नहीं बनाया है। इसे अपने जीवन में उन्होंने हमेशा ही मजबूती और एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है। गांधी जी का कहना था कि यदि आप महान बनना चाहते हैं अथवा आप अपने आत्मा को बलवान बनाना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखिए। और गांधी जी ने हमेशा ही सहिष्णुता को ताकत के रूप में इस्तेमाल किया है। सो हैप्पी गांधी जयंती रिस्पेक्टेड प्रोफेसर एंड पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत अच्छा। Asita, who is next? Next we have Adarsh with Gandhian views on the environment. Good morning, everyone. Today, I, Adarsh Chavla, I will be speaking a few words on the Gandhian views on environment. So, the earth has enough resources for everyone's need, but not for everyone's greed. This is the most often quoted phrase by Gandhi and depicts his concern for nature and environment. All the international conferences, such as the Stockholm Conference or the Rio Earth Summit, were convened much later than the concerns raised by Gandhi about the environment and its effects. Even in India, the major movements to protect environment, such as the Chipko movement, led by Chindi Prasad and Sundarlal Bahuguna and Narmada Bachao Andolan, derived inspiration from Gandhi. The concern of Gandhi about the environment, urbanization, and mechanization was evident in his speeches, writings, and his messages to the workers. Gandhi had cautioned the world much before any modern-day environmentalist about the problems of large-scale industrialization, which we are confronting today. Gandhi visualized that mechanization will not only lead to industrialization and will further lead to unemployment, but will also lead to the destruction of environment. His seminal work, Hind Swaraj, written 100 years ago in 1909, warned of the dangers the world is facing today in the form of environmental destruction and threat to the planet. The Gandhian era becomes still more relevant when sustainable growth and development is to be achieved because he emphasized on production by the masses instead of mass production. According to him, this will result in the development of an economic system that can minimize degradation and achieve sustainable development. His idea of Swaraj or self-rule enables the practical sustainable development that can be implemented without compromising the quality of life. Non-violence and conservation of resources. The Gandhian idea of non-violence, if adopted at various levels from international politics to local levels, can be useful to reduce carbon footprints caused due to wars and production of missiles. Gandhi had emphasized the importance of natural resources and its conservation. This has a direct bearing on the man and environment relationship. The importance of Gandhian philosophy is well felt in the present period in which lifestyle of human beings has been developed in a direction of high consumerism and generation of waste. This has a two-way impact on nature. Firstly, the rate of depletion of resources has increased tremendously, and secondly, the presence of toxicity in air, water, and soil has increased. Satya, Ahimsa, and conservation of biodiversity. Gandhi was greatly influenced by Jainism, which looks at nature as a living entity and exhorts human beings to continually purify themselves by respecting diverse life forms. The Gandhian idea of Satya and Ahimsa can be useful to reduce the greed of individuals and society. His concept of non-violence thus encompassed all living beings and embodied the entire internal values of life in his thought and actions. He insisted on the eternal sacredness of life that included a tree, a plant, or a cow. Reportedly, the English historian Edward Thompson once remarked to Gandhi that wildlife was rapidly declining in India, to which Gandhi replied with sarcasm, "Wildlife is decreasing in the jungles, but increasing in the towns." According to him, reckless and limitless pursuit of industrialization by all nations has posed serious problems for the very existence of not only man, but also for all living creatures and all kinds of species on our planet. The concept of Sarvodaya is also like that of sustainable development and forms a part of environmental ethics. Gandhi's vision of Sarvodaya implies a healthy development, an environment that can be evolved by man to ensure his harmonious existence with nature and other living beings. Gandhi did not recognize separate rules for separate spheres of human life, but saw all spheres in an integrated manner, which exemplifies best the human ecological perspective.
What he preached and practiced corresponds to what we today call the eco-friendly measures and living in harmony with the nature. With that, I'll end my speech. Thank you very much. Thank you, others. Asita, 1 minute, please wait. I want that if anybody is having any questions from Dr. Patanjali, then he can ask Dr. Patanjali questions, and I request Dr. Patanjali to be here for few minutes for us. So if any questions for you, I will take that question first, and as Dr. Patanjali has another commitment, so he has to move. So if any questions from Dr. Patanjali, either on YouTube or your Instagram or Facebook, anywhere, you can take the questions for Dr. Patanjali. And then if there is no question specifically for him, then I wish that I should say thank you to Dr. Patanjali that he has taken out the time and the finest way you have explained us that principles of Gandhiji. So I am very thankful to you, Dr. Patanjali, and I wish that you will be with us in coming times and guiding us for the different walk of the life. Thank you very much, Dr. Patanjali. So if you want, you can, sir, you have to unmute yourself. आपका सर आवाज नहीं आ रहा, सर आप अनम्यूट करें अपने को. सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, आपको अपने मोबाइल से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आपने बंद किया हुआ है साउंड को. डॉक्टर साहब आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक्रोफोन बंद है. आप माइक्रोफोन के स्विच को ऑन करें सर. Your microphone is off, sir. Dr. Patanjali, your microphone is off. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. अब आई आवाज? आ रही है सर, अब आ रही है बिल्कुल. तो मुझे आपका धन्यवाद करना था और शुभकामनाएं देनी थी. ये बहुत बड़ा विषय है और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में लेके और अलग अलग इस तरह की परिचर्चा करेंगे तो ये बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है. आज की इस वेबिनार के लिए इसकी जो सफलता है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Now, Adita, you can take the next speaker. Dr. Rajiv, I think you don't have any problem if you stay with us for 5 or 10 minutes. 10 minutes I can stay. I have also got another webinar at 3. Okay. So no problem. So wait for 10 minutes. If you are there for 10 minutes, that it will be a good for us. Sir, we'll hardly take 10. Yeah. Go ahead. No problem. Thank you, sir, for staying with us. I will now like to call Agya to talk about relevance of Gandhian principles in present-day startup culture. Very good afternoon to honorable faculty members, respected society president, other members of society, and my dear friends. I, Agya Mishra, second year student in civil engineering department at DTU, feel very privileged and honored at the same time to present my views before you all in a spirit of humility to speak about one of the greatest figures of history whose experiments with truth led our country's freedom struggle. The topic that I have chosen today is relevance of Gandhian principles in present-day startup culture. The word startup has been around quite some time, being used with high frequency among the so-called tech groups. Be it the Silicon Valley of the West or the Silicon Capital in the East, there has been a mad frenzy about the word startup. I stumbled upon these random thoughts when I was trying to search one of the earliest promoters of startups, and yes, to everyone's surprise, it was one of our very own, our father of nation, Mahatma Gandhi. Post-independence, we have seen a drastic shift in the technological and economical graphs of India.
We have seen formation of new cities and rise of industrial centers across the geography of our country. Government heavily invested in large-scale industries. This investment in turn helped in creating large-scale employment for the youth of independent India. This helped us to stand and compete in global markets. It showed our industrial and manufacturing capabilities and gave us international presence among the fast-growing countries. Working for these large industries were like a dream come true for any school-going kid those days. These giant magnates started attracting every able person who could devote his physical and intellectual labor to these industries and enrich them further. These cities where these industries were located became the new hotspots of economical growth of India. They provided large-scale employment, a well-defined salary for the ever-increasing cost of living. It uplifted a considerable sector of our population who today actually is having a well-to-do livelihood. The country's GDP also spiked. For a country coming out of the clutches of European administration, it was a great deal to stand upon its own legs and create itself a place in global markets by exporting products and goods to earn revenue. Looking at these developments, I have always wondered why was Mahatma Gandhi, the father of our nation, trying to promote small-scale industries versus these large big firms that were generating these big revenues? Why did he stress on the principle of self-reliance and was so hell-bent on getting village industries and self-employment promoted? We might find the answer we concentrate on some of the after effects of industrialization. Pre-independence India being a mainly agricultural and farming-based country, a large portion of its population was dependent on farming and its profits. Due to less investment in agriculture by the government, resulted in our agriculture reduced, causing large-scale poverty. The introduction of middlemen and markets created a huge gap between the producers and consumers, causing a shift in the concentration of wealth from producers to middlemen, where majority of the profits did not reach the producer. Industrial production increased our exports. However, it hit hard on our talented artisans because the individual arts, skills, and producers could not stand in competition to these big industries. Due to this, our skill set started diminishing. Creation of these industries and cities also caused deforestation, diminishing water bodies, and a lot of other threats to the country's environment. However, past is done. Today, after 73 years of independence, we have these new big things called the MNCs or the multinational corporations that are lifting its hood up and engulfing the same set of youths and attracting the country's mass population to come and work from them. The history of MNCs is closely associated with colonialism. The corporations like British East India Company were founded to undertake colonial expeditions. Their motto was similar: exploit the colonial resources, labor and invest the resultant profits and net gain in their own countries. I see we are going back to the colonialism and getting back into the clutches of foreign investment and demands. As I see, the end result of the process would be enrichment of the colonizer and the impoverishment of the colonized. Mahatma Gandhi always stressed upon self-reliance. According to him, self-reliance should not mean divorcing international trade. India will always have to seriously engage with the region and the world, but at the same time strengthen its own domestic industry by streamlining the government's system and go far beyond amendments and announcement. Swadeshi does not and should not be interpreted as isolation. Instead, Swadeshi movement and self-reliance have always been the two sides of the same coin that would help India find currency in a globalized world. I see startups as nothing new but as self-employed and self-reliant industries, supported by local talent which can create original Swadeshi products and in a way improve our livelihoods and local systems. This is the same ideology that our father of nation preached us pre and post independence, which we failed to adopt. In the jazzy name of startups, we are still trying to emulate what Mahatma Gandhi preached long time back. We might idolize Steve Jobs and Bill Gates today, but the reality is we are standing decades back from where we are supposed to be. So it is high time for us to step back and do introspection. If we can idolize Mahatma Gandhi and his preaching to a certain extent, we should be able to create the next Google and the Amazons of the world from here. Thank you so much. Godspeed and a very happy Gandhi Jayanti to you all. Thank you so much. Thank you, Agya. We now have Nimisha to talk about Gandhian principles on human relationships in the contemporary world. Thank you, Ashita. A very good afternoon to all the eminent professors and my fellow juniors and my peers who've gathered today on the occasion of the 151st
Mahatma Gandhi Jayanti, and I'm so thankful to Ski for giving me this platform to express my views. A lot of Gandhian principles have already been touched upon in some way or the other, and I really hope that what my presentation can offer something new to you. I'll just present my screen. There's a little presentation that I made. So I'd like to quickly begin with this artwork by Gigi Scaria, and I'm sure right off the bat you'd be able to notice something different. आप देखेंगे कि गांधी जी तो इधर देख रहे हैं, बट बाकी सारे जो लीडर्स थे वो दूसरी डायरेक्शन में उन्होंने देखना शुरू कर दिया है, वो दूसरी डायरेक्शन में देखना चल दिया है उन्होंने. एंड दिस इज नॉट टू पॉइंट टूवर्ड सम लीडर और किसी को भी पॉइंट करने के लिए नहीं है ये बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन डिड वी डिविएट. जब हम सब जानते हैं कि गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन थे एंड हैं बल्कि, एंड इट्स बीन 73 years of our independence. We know what his principles were. We know how we achieved independence because of his principles of non-violence, truth, honesty, love, self-reliance. But ये सब जानते हुए भी हम लोग क्यों, when did we deviate? तो बस उनके कुछ कोट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं जिन पे मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी क्योंकि बहुत टाइम जा चुका है एंड आई एम श्योर एवरीवन इज वेरी बिजी. सो द फर्स्ट वन ऑब्वियसली व्हाट माय टॉपिक वाज कि रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन 4 principles: respect, understanding, acceptance and appreciation. Now human relationships, I like to touch upon human relationships in 2 ways. One is leadership and the other is कि हम सब कैसे अपने आसपास में रहते हैं. तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उनका साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम का है. जब उन्होंने शुरुआत की थी इस चीज की, उन्होंने किसी के लिए भी डोर्स क्लोज नहीं किए थे. जो अनटचेबल्स थे जिनको वो हरिजन बुलाते थे उनके लिए भी वेलकम था एंड सबको वो एक समान दिखते थे, सबके लिए उनके लिए रिस्पेक्ट था. चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो जब उन्होंने ब्लैक एक्ट को के लिए खिलाफ लड़ा था, जब एक्चुअली उन्होंने अपना सेल्फ अलाइंड मूवमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट किया था, उसमें सबके लिए रिस्पेक्ट थी, सबको सुनते थे. चंपारण में, बिहार में उन्होंने एक फार्मर को सुना था जिसकी वजह से फिर फाइनली इंडिगो के खिलाफ लड़ाई हुई थी. एक्सेप्टेंस, जैसे वही हरिजन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड अप्रिसिएशन, सबके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस को वो सराहते थे. एक छोटा सा कॉपर सिक्का भी अगर उनको उनके फंड्स के लिए मिलता था तो उसको संभाल के रखते थे. नेक्स्ट, an eye for an eye will only make the whole world blind. This is so true. We all know that the tit for tat strategy cannot hold good. मतलब there is no scope for forgiveness in that strategy. सब एक दूसरे के लिए रिवेंज लेते रहते हैं. That's just instant gratification. In today's fast-paced world, we notice this a lot when almost everything just happens at the click of a finger, at the touch of a button. And अगर थोड़ा सा भी कुछ few microseconds भी डिले हो जाते हैं, so we get so impatient. एक अलग तरीके की बेचैनी हम लोग महसूस करते हैं and कोई patience नहीं है, कोई tolerance नहीं है and ये बहुत जल्दी हमारे reactions आते हैं. तो इसका कोई फायदा नहीं है. It does not work that way. We need to be patient. We need to have an understanding towards the other person. Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. I cannot stress upon this enough. India is a free country and हम लोग बोलते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की गुलाम है या फिर corrupt leaders की गुलाम है या कुछ भी है. If you are doing the right thing, then you have no reason to be afraid. Then you have no reason to be not be free. What I'm trying to say is कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मम्मी के साथ भी, प्रोफेसर के साथ भी या किसी के साथ भी, अगर आप अपनी तरफ से राइट चीज कर रहे हैं तो आप फ्री हैं. आपको कोई किसी चीज का डर ही नहीं होना चाहिए. आप किसी चीज के गुलाम नहीं है. In a gentle way, you can shake the world. Now, I don't know if some of you know or not. You might be knowing that Gandhiji wrote a letter to Hitler, and in that letter he addressed Hitler as my dear friend. Now, this is unimaginable. We know what sort of atrocities Hitler unleashed, but just like the quote says, that in a gentle way, you can shake the world. आप थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं. हम सब एक रैट रेस में हैं. हम चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ यूनिक करना, कुछ बदलाव लाना, लेकिन अल्टीमेटली हम सब जाके एक ही रैट रेस में फंस जाते हैं. अगर थोड़ा सा भी यूनिक होंगे, थोड़ा सा भी डिविएट करेंगे तो हम सच्ची में वर्ल्ड में कुछ चेंज ला सकते हैं. एंड दैट टू इन अ जेंटल वे. वी डू नॉट नीड टू रियली गो ऑल आउट या बी फ्लम्बॉयंट. गांधी जी आप देखते हैं, कोई उनका बॉडी नहीं था, बिल्कुल फ्रेल इंसान खादी में. सो सिंपल एंड रियली आई मीन इंटरनेशनल आइकन है, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला बार बार.
what you do says what is most important to you. Action expresses priorities. Again, जैसे अभी पतंजलि सर ने भी बोला था कि उनकी कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं था, एंड जो आप करते हैं वो रियली दिखाते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई फील विच इज वेरी ट्रू टू एवरीबडी. हम लोग सब बोलते हैं कि हम बिजी हैं एंड सबके दिन में ही 24 घंटे होते हैं, तो हम जिस तरीके से अपना काम प्रायोरिटाइज करते हैं, इट रियली शोज हु वी आर एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स अपॉन अस. Lastly, my slide is that the future depends on what you do today, as my topic was to speak on human relationships in the contemporary world. And this cannot be stressed upon enough in terms of the environment, in terms of your career ambitions, who you are as a person, what you want to do. And I mean, it's as plain as day, the fact that the future depends on what you do today. जो आप आज कर रहे हो उसी तरीके से आपका future होगा. So I mean, that's it. That's for me. Thank you so much for hearing me out. Thank you so much. Happy Gandhi Jayanti. Thank you, Nisha. We now have Pragya to conclude by the rise of pseudo-nationalism and its effect and legacy of Gandhi. Good afternoon, everyone. I'm Pragya Pandey from Prayagraj. So as many people told about his ideologies and his principles and how to apply it in contemporary world, so I would like to keep it short. That हम principles को किसके अपनाते हैं, जिसकी हम respect करते हैं. And what I have felt in today's world, that our generation is disrespecting Gandhi ji in many ways. I don't know why, or is that has become a trend कि अगर आप nationalist हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, तो you're going to disrespect गांधी जी. गांधी जी की गुणगान करना बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह से हम भारत में महिला सिक्योरिटी की बात करते हैं, वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं कि कुछ होता है तो हम 4 दिन बात करते हैं, 5वें दिन बंद कर देते हैं. उसी प्रकार से गांधी जी का जन्मदिन हुआ या कोई स्वतंत्रता दिवस हुआ या कुछ हुआ तो हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं और उसके अगले दिन बंद कर देते हैं. और शायद हम ही में से कोई एक होगा जो आज यहाँ गांधी जी का गुणगान कर रहा है और शायद कल जाके उन्हीं को डिसरिस्पेक्ट करेगा. सो इट्स दैट गांधी जी वाज सच अ ग्रेट पर्सन. आई फील सैड, I really felt sad the day when I got to know that there has been a petition has been signed जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो फादर ऑफ द नेशन का कोई पद ही नहीं है, तो गांधी जी को हम फादर ऑफ द नेशन कैसे मान लें. तो I just want to tell those people who have signed these kind of petitions that father of the nation is an emotion. हमने उन्हें अपना राष्ट्रपिता घोषित किया था, इसको पद की जरूरत नहीं है. And what गांधी जी did for India, वो कोई कर ही नहीं सकता है. गांधी ने भारत को भारत बनाया था. 1917 में जब गांधी लौटकर आए थे तो भारत वालों को डर लगता था जेल जाने से, कहीं भी जाने से. उन्होंने यूनिटी बनाई, उन्होंने लोगों को जोड़ा, उन्होंने लोगों को नॉन वायलेंस से ही जोड़ा. गांधी जी जो कर गए वो शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा. एंड द थिंग इज दिस, दैट पीपल who criticize them has never read like books like Ramchandra Guha, My Experiments with Truth. Even they have never read Why I Killed Gandhi. Even I would like to tell people who don't even know कि जब नाथूराम गोडसे ने भी उनको मारा था तो वो 3 बार आई और उनके चरण को स्पर्श करके उन्होंने उनको शूट किया था. So the thing is this, that we generation, we are the successor, we are the future of India and we are supposed to respect Gandhi because जैसा कि यहाँ कई लोगों ने कहा, respected all participants, respected dignitaries, everyone said कि हम कैसे उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें. तो उनके प्रिंसिपल्स को हम तभी अप्लाई करेंगे जिस दिन हम उनकी इज्जत करेंगे, और उनकी इज्जत करना शायद बहुत बड़ी बात है. ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सब कुछ अप्लाई हो जाएगा. हम अपने पिता की बात मानते हैं क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं, सेम तरह से हमें गांधी को इज्जत करनी पड़ेगी. एंड I won't take much time, but the thing is this, शायद मेरा इस पैनल पे आना सफल हो जाएगा अगर हम में से कोई एक आदमी भी आज यहाँ जाने से, यहाँ जाने के बाद अगर उसके सामने कोई गांधी की बुराई करता है तो वो शायद मुझे याद करके या मेरी बात याद करके, यहाँ जितने लोगों ने बोला है गांधी जी के बारे में, उनकी किसी भी एक बात को याद करके अगर कोई ये बोल सके कि नहीं गांधी ऐसे नहीं थे. यहाँ जिन लोगों ने गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस का गुणगान किया है,
इसको याद करके अगर उसके सामने कोई बोल सके कि गांधी ऐसे थे और इसलिए तुम्हें गांधी की इज्जत करनी चाहिए, तो शायद मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा. That's it. I won't take much time, but the thing is that we are supposed to respect Gandhi. Do respect him. Do read Ramchandra Guha. Do read My Experiments with Truth. गांधी जी ने गलतियां कर करके सीखी. गांधी जी ने मांस खाया, गांधी जी ने चोरी की, गांधी जी ने झूठ बोला, लेकिन फिर गांधी जी ने जब उन्हें एहसास हुआ चीजों का, so he changed himself. So the same thing we need to do. अगर आज भी हम उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं आज के बाद भी, तो शायद गांधी जी ने जब आजादी दिलवाई होगी तो ये नहीं सोचा होगा कि जिनको आजादी दिलवा रहे हैं वो आगे जाके ऐसा करेंगे. I do agree. G.D. Bakshi, there's a book, Gandhi or Subhash, the person behind the Swaraj. People read it and pseudo-nationalists come and they used to speak कि नहीं भाई गांधी जी ने तो आजादी दिलाई ही नहीं. तो भाई प्लीज अगेन आई एम टेलिंग, गांधी ने भारत को भारत बनाया था. रिस्पेक्ट करिए. अगर आप नेताजी की रिस्पेक्ट करते हैं तो नेताजी ने ही रशिया में बैठ के रेडियो पे कहा था कि मैं राष्ट्रपिता से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ. नेताजी वाज द वन हु proclaimed गांधी जी as राष्ट्रपिता, the father of the nation. So do respect him. शायद ये गांधी जयंती सफल हो जाएगी. To everyone, happy Gandhi Jayanti. That's it. Thank you so much. I think we have the speakers end here, and now I would like to invite our president, Abhishek sir, to propose the vote of thanks. His Excellency Professor S.K. Singh, our faculty advisor, Professor A.K. Srivastava, who is also a backbone of all the initiatives and a true mentor for us. From our DTU itself, we also have our Anunay Gaur sir, who with time keeps us motivating to take such kind of initiatives. For our panelist, Dr. Rajiv Kumar Verma, I would just like to say that we students can relate you by seeing taking you mock interviews on YouTube for various UPSC aspirants, and especially on a personal note, sir, when Professor Srivastava told me that you have agreed to attend this session, I was the person who was very much excited to welcome you in this session. So thank you, Abhishek. Thank you. Thank you. I would also like to thank Professor Deshwal and Professor Patanjali for taking out their valuable time with us. And on behalf of Society for Civil and Environmental Engineers, I assure you all that in the coming time, we'll come up with such kind of insightful sessions that will make us more powerful, and in a coming time, we'll just take such more initiatives. Thank you all. थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच. फिर मुलाकात होगी हम लोगों की. हाँ जरूर जरूर जरूर. ये सिंह साहब चले गए क्या? सिंह साहब चले गए. सिंह साहब अच्छा चले गए.